Hello everyone, welcome back. I'm Mrs. Varsha and you are with me in Saraswati coaching classes, and we are talking about class 10 biology, our environment. Now we are here in the last topic of this chapter, that is management of garbage. What is garbage? What is garbage? Garbage is nothing but the waste which is generated by the domestic use, that is called as garbage, solid waste. And in our domestic waste में जो भी पूरा liquid आता है, that is called as sewage. What that is called as sewage. The difference between garbage and sewage is very easy but very important. Garbage is what the solid waste which is generated, and sewage is the liquid waste which is generated in the household activities or domestic use. Now, if you think about the garbage, just think about a day when a garbage collector did not come to collect the garbage in your colony or in your society. What will happen? There will be a heap of garbage. आपका जो डस्टबिन है वो ओवरफ्लो हो जाएगा. कितने भी कम ज्यादा साइज का हो वो ओवरफ्लो हो जाएगा. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ मच गार्बेज इज जनरेटेड बाय एन इंडिविजुअल फैमिली. चाहे वो फैमिली में 4-5 लोग हैं या 9-10 लोग हैं, अकॉर्डिंग टू देम द गार्बेज इज जनरेटेड, isn't it? And if we will not dispose that garbage in proper way, that may lead to the very क्या बोलते हैं, एकदम गंदगी जैसे है ना, वो फैलने का वो एक जरिया बन जाता है. That starts to rot, that starts to decay, that gives foul smell, and that invite many flies. और flies है तो ultimately bacteria वगैरह आ गए और वही हमारे घर में, तो फिर सोचो ही मत आगे का. So to manage the garbage is very important. First of all, मैनेज करने से पहले ये सोचो कि कम से कम गार्बेज प्रोड्यूस हो हमारे घर में. अंडरस्टूड? जो भी चीजें हैं जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम फेंकने वाले हैं, उसके लिए 2 बार सोचो कि इज इट सफिशिएंट फॉर मी. एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. सपोज आई एम अ किड एंड आई वांट टू मेक अ पेपर प्लेन, राइट? हाउ मच पेपर आई विल नीड, मतलब साइज 10 by 10 या 15 by 15 का कितना भी चाहिए, तो आई मस्ट टेक दैट मच ऑफ वेस्ट पेपर ओनली. आई शुड नॉट टेक होल पेज फ्रॉम दी रफ नोटबुक और न्यूज़पेपर से मैंने पूरा ले लिया, फिर यहाँ से काटा, वहां से काटा, यहाँ से काटा, और फिर उसमें इतना बड़ा पेपर काट के मैंने इतू सा पेपर प्लेन बनाया, और जो बचे हुए पार्ट ऑफ द पेपर, न्यूज़पेपर और द बुक का जो पेपर था, वो था वेस्ट, दैट इज जनरेटेड एज अ गार्बेज. शायद वो आप नेक्स्ट टाइम किसी और छोटी सी बोर्ड के लिए, पेपर बोर्ड के लिए भी यूज कर सकते थे, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. So before you think about the management of garbage, first before that think about the less production, less generation of the garbage. कम से कम जितना गार्बेज निकाल सको उसके लिए कोशिश करो, ठीक है? So anyways, it is going on generated and we have to dispose it, we have to manage it so that it will not cause any harm to our environment. For that you have different steps, different measures, different ways. Which are that? Just have a look. First is recycling, another is compost preparation. ये बहुत बार पढ़ा है आपने, क्लास 6, 7, 8, 9th में भी पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में. Then incineration, this is quite new for you, that I will tell you about it. Landfill, ये भी सुना होगा, but I will also tell you in detail about this. And sewage treatment. Now recycling. आपने 3 hours के बारे में तो सुना है, 3 hours या फिर 5 hours भी कहाँ पे बोले जाते हैं. So this 3 hours, simply we will talk about the 3 hours instead 5, जो easy है. Reduce, reuse and recycle. Reduce, जो मैंने अभी explain किया आपको. Reuse and recycle. Whatever garbage we are generating out of that, the things which can be avoided to use should must be avoided. ठीक है? तो reduce हो जाएगा garbage. Then reuse. Suppose I have brought the pickle from the market and I got that pickle in the glass jar. In a glass jar. So after
using that pickle completely, that empty jar, I should not throw in the garbage. I must use that to store either dry spices or dry fruits, या फिर जो भी ड्राई चीजें हैं, या फिर किसी और मटेरियल के स्टोरेज के लिए आप वो यूज कर सकते हो, ताकि हम उस चीज को बिना वेस्ट किए बार बार यूज कर सके। इवन इससे एक और भी चीज है कि बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट, जनरली हम बच्चों को ये एक्टिविटीज देते हैं, ट्राई टू मेक समथिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट निकलता है घर से। सो आप जो भी चीजें हैं उसको रीयूज करके, चाहे वो बॉटल्स वगैरह हो, जार्स वगैरह हो, उसको गार्डन में पानी देने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर उसको कट करके समहाउ उसमें ट्रीज ग्रो कर सकते हो, छोटे छोटे ग्रो कर सकते हो, या फिर और किसी पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। और द थिंग्स लाइक ब्रोकन ग्लासेस, मेटल पीसेस और पेपर जो निकलती है हमारी न्यूज़पेपर, तो उसको हम रिसाइकलिंग सेंटर में भेज सकते हैं, या फिर कबाड़ी वाला वगैरह आता है उसको हम जो पुराने न्यूज़पेपर है वो दे सकते हैं, ताकि वो उनको रिसाइकल्ड करके यूज कर सके। अंडरस्टैंड? सो रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट मेजर विच वी मस्ट प्रेफर। द नेक्स्ट इज कंपोस्ट प्रिपरेशन। दिस इज mainly related with the whole biodegradable garbage which is generated from our home. इसमें आपका लेफ्ट ओवर फूड आता है, आपका वेजिटेबल पिल्स, फ्रूट पिल्स, या फिर पार्ट ऑफ द थिंग्स विच वी आर यूजिंग इन द कुकिंग, दैट इज देयर। देन जो वाटर है हम यूज करते हैं वो भी अप टू सम एक्सटेंट वी कैन यूज। देन इफ वी हैव सम डोमेस्टिक एनिमल्स एट आवर होम लाइक काउज, डॉग्स, बफेलो वगैरह, तो उनका काउडंग, उनका जो लेफ्ट ओवर फॉडर है वो सारा यूज करके एट अ टाइम, प्रोवाइडेड हमारा छोटा सा गार्डन भी है, गार्डन में रोज हम झाड़ू लगाते हैं तो इतने सारे फॉलन लीव्स वगैरह हमें मिलते हैं हमें, तो ये सारी चीजें इकट्ठा करके हम छोटे छोटे कंपोस्ट पिट बना सकते हैं हमारे गार्डन में। कंपोस्ट पिट कैसे बनाना है, उसको कैसे वाटर स्प्रिंकल करना है, हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट फॉर दैट वी हैव स्टडीड। तभी मैंने बोला क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में भी आपने ये पढ़ा है हाउ द कंपोस्ट इज प्रोड्यूस्ड। नहीं तो कोई भी क्लास की बुक खोल के देखो, आपको डेफिनेटली ये मिलेगा। इट इज द इजीएस्ट टास्क। सो वी कैन गो फॉर कंपोस्ट प्रिपरेशन। आई एग्री कि ये इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं होगा ताकि आप उसको सेल आउट कर सके, लेकिन वो जो कंपोस्ट प्रिपेयर होगा ना, आप उस कंपोस्ट को आपके घर के गार्डन में जो भी पॉटेड प्लांट्स है या फिर जो भी आपने लगाए हैं ट्रीज वगैरह, उसमें आप एज अ मैन्योर यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट वन इज इंसिनरेशन। दिस इज इम्पोर्टेंट वन। दिस इज, अभी ये जो नीचे के जो 3 मेजर्स है, दैट इज फॉर गार्बेज विच इज कलेक्टेड ऑन ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो गार्बेज कलेक्ट होता है तब। इंसिनरेशन में क्या होता है, एक्चुअली देयर इज अ इंसिनरेशन फर्नेस। फर्नेस मतलब एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है, बहुत बड़ा, और उस कंटेनर में सारा जो गार्बेज है वो डाल दिया जाता है, एंड इट इज क्लोज्ड। इट इज क्लोज्ड, इट हैज वन आउटलेट टू रिलीज द गैस, and it is heated up to 1000 degree Celsius. Why? To reduce whole that garbage into the ash. This method, incineration method, is a method in which garbage is burnt, heated at a 1000 अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाता है, ताकि वो जो पूरा गार्बेज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, ऐश में कन्वर्ट हो जाए। सो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन भी कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो स्पेस ऑक्युपाई है वो भी कम हो जाती है। एंड दिस इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक्चुअली अगर बहुत ही बड़ा हीप है गार्बेज का और वो नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है तो इट टेक्स मेनी डेज, राइट? But on the contrary, it takes few hours to convert that huge amount of the garbage into the ash. That ash can be used in the production of manure, or that you can directly apply into the farm. खेती में आप उसको directly as a manure आप उसको use कर सकते हो। Then landfill. Landfill is a method which is being used in our country from many years. यहाँ पे क्या होता है, जो भी लो लाइन एरियाज होते हैं ना, लो लाइन मतलब ग्राउंड लेवल से
नीचे है। सपोज ये ग्राउंड लेवल है हमारी, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो ग्राउंड लेवल से थोड़े से नीचे होते हैं, राइट। ओके, सपोज ये आपकी ग्राउंड लेवल है। तो ये जो लो लाइन एरियाज होते हैं ना, इसमें ये जो गार्बेज है, ये पूरा गार्बेज ऐसे डाल दिया जाता है, ये जो पूरा गार्बेज है। और इस गार्बेज को कंटिन्यू डालने के बाद, कंटिन्यू ईयर्स ईयर्स फ्यू ईयर्स तक डालने के बाद, ये जो पूरा रीजन है वो रीजन ग्राउंड लेवल तक आ जाता है। कहां तक आ जाता है? ग्राउंड लेवल तक। अभी इसके बाद when we are talking about landfill, कंफ्यूज हो जाओगे इंसिनरेशन में क्यों लिखा है। So what happens when these low lying area is getting filled again and again with the garbage once it come to the level of ground। अभी at that time here on that place, above that field area, the public parks, छोटे छोटे गार्डन्स या लाइब्रेरी, ऐसे पब्लिक प्लेसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बाय द म्यूनिसिपैलिटी, और जो गवर्नमेंट जो है उस एरिया में जो काम करे उनके थ्रू। अंडरस्टैंड? एज आई टोल्ड यू, हियर वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट बिग बिल्डिंग्स बिकॉज द बेस इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी देयर फॉर बिग बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ओके, यहाँ पे एक तो ये जो लैंड है ये काफी रिच है विथ न्यूट्रिएंट्स। क्यों? क्योंकि पूरा जो गार्बेज है वो यहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है लैंडफिल में। हम बार बार वहां पे अप्लाई कर रहे थे, हम वहां पे प्रेस कर रहे थे, तो इसी वजह से वो भर के आया है वो लो लाइन एरिया, तो वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन जाती है वहां पे। सो ये गार्बेज फिर उसके ऊपर सॉइल की लेयर्स अप्लाई करके वहां पे ट्रीज प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, और अम्यूजमेंट पार्क या फिर गार्डन या फिर पब्लिक पार्क ऐसा क्रिएट किया जाता है। Understand? And the last one is sewage treatment. Sewage, I told you. What is mean by sewage? Sewage is nothing but the waste water released from the domestic use. Now, earlier sewage treatment के लिए it was just the filtration chambers. Filtration मतलब जहाँ पे outlet होते थे वहाँ पे filtration chamber होते थे. But nowadays the government has taken a very nice step against this sewage treatment, that they have established a big sewage treatment plants. Sewage treatment plants मतलब बहुत ही बड़ी प्लेस होती है which is being utilized. सपोज ये एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां पे ऐसे बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक रहते हैं। इट इज जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। So, and they are interconnected. They are interconnected through the pipes. And when the sewage water is allowed to enter, it is filtered. Okay, उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू, CO के थ्रू फिल्टर किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको एरिएटेड किया जाता है ऑक्सीजन गैस उसमें इंसर्ट करके। सो फिल्ट्रेशन, aeration, okay, then purification. So like this many processes are which are carried out on that wastewater, and finally it is released to use in the agriculture or the industrial purpose. वो जो पूरा वेस्ट वाटर था उसको ट्रीटमेंट करके, देखो उसको फिल्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है, उसको प्यूरिफाई करना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो जाते हैं। जैसे अगर किचन वेस्ट है तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर गेटिंग एडेड, अगर एनिमल वेस्ट है तो उसमें स्लरीज वगैरह, यूरिन वगैरह ऐड हो जाता है। हमारा भी देखो वॉशिंग पाउडर्स वगैरह, डिटर्जेंट्स वगैरह, सोप्स वगैरह, उनका सब फोम, ये सब चीजें उसमें ऐड हो जाती है। तो उनको स्टेप बाय स्टेप फिल्टर करके, प्यूरिफाई करके, इट इज फाइनली रिलीज्ड सो दैट इट कैन बी रीयूज समवेयर, नॉट एग्जैक्टली फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, बट इट कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, it can be used in some small scale industries, it can be used some small scale या domestic factories के लिए भी ये यूज किया जाता है।
Understand? And the water which is released through it is not getting wasted. It is getting used again. Clear? Now in this way we have completed this chapter, that is our environment. Now what is your duty? Your duty is to go through the whole chapter and read it, learn it well, write all the key points from it, and if you have any query, if you are in my group, then let me know in the group. If you are not in my group, then let me know in the comment box there in our YouTube channel. And again I want to remind you, you have not yet subscribed it. Just subscribe and press the bell icon. You can share our channel with all your friends, relatives, neighbors, so that they can also get the advantage of this learning method. Clear? Till that time, think positive and keep smiling. Be happy always.